So, hello students, welcome to daily AIA PGT practice questions organized by Aapta Ayurveda classes. Daily you will be given a target of 10 questions and the time limit provided to you will be of 15 minutes. What you have to do to give the test? First, you have to download the app that is Aapta Ayurveda classes from Google Play Store. After that, you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test. After enrolling, you can start appearing for the test. And after finishing the test, you can check the solutions on our YouTube channel that is Aapta Ayurveda classes. So let us begin with our first question of the day. First question is, Hager's sign occurs in which week of pregnancy? This is an important question. So first, Hager's sign occurs in first trimester. And what is Hager's sign? Hager's sign is upper uterus is large and lower uterus is small. Lower, small, and the cervix is firm. This is Hager's sign. Upper uterus is large, lower is small, and cervix is firm. And the answer is option B, 6 to 8 weeks. So Hager's sign occurs during 6 to 8 weeks of pregnancy, that is in first trimester. Option B, second, is correct. Next question, which of the following symptom is not included in triad of Meniere's disease? Again, this is an important question. Meniere's disease is related to disease of ear, usually inner ear. So, Meniere's disease triad says vertigo, deafness, and tinnitus. These are the three conditions, or you can say the three symptoms occurring in Meniere's disease. Otorrhea does not occur. So it is not included in the triad of Meniere's disease. Option B, second, is correct, otorrhea. Option C, otorrhea, third option is correct here. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चरक अनुसार पांडु एवं कामला किस तन्य दृष्टि का लक्षण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. पांडु और कामला, यह राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दौर्गंध्य. दौर्गंध्य स्तन्य दृष्टि के बारे में कहा गया है. अब ए देख लेते हैं, वैवर्ण्य के बारे में क्या कहा गया है? स्विन्न, तृष्णा और भिन्नविट. ये आया है किसके बारे में? वैवर्ण्य के बारे में. पिच्छिल के बारे में क्या कहा गया है? लालास्त्राव और मुखशोथ. यह पिच्छिल के बारे में कहा गया है. गुरु के बारे में इंपॉर्टेंट है, कहा गया है हृदय रोग. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. और पांडु और कामला किस तन्य दृष्टि का लक्षण है? दौर्गंध्य का. So option B, second, is correct. Reference is Charak Chikitsa 30th Adhyay 245th Shlok. Second option is correct. Next question. Height of children becomes 100 centimeter at which age? Again, this is an important question. So the right answer here is 4 years. In 5th month, the height of children remains same, means as during birth. In 1 year, the height increases up to 73 centimeters. In 2 years, the height increases up to 90 centimeters. And in 4 years, the height increases up to 100 centimeters. So option D, 4 years, is correct. Next question. नीचे दो कथन दिए हैं. कथन एक, सुश्रुत अनुसार शिशिरा श्रुता पित्तज नेत्र अभिषंद रोग का लक्षण है. कथन 2, सुश्रुत अनुसार शिशिराभिनंदा कफज अभिषंद रोग का लक्षण है.
उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। रोग निदान का ये क्वेश्चन है। तो दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं हम। सुश्रुत अनुसार शिशिरा शूद्रा पित्तज अभिसंध का लक्षण है, बिल्कुल नहीं, गलत है। शिशिरा श्रुता किसका लक्षण है? वातज अभिसंध का, नोट करके रखिए उसको। सुश्रुत अनुसार शिशिराभिनंदा कफज अभिसंध का लक्षण है, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि शिशिर अभिनंदा किसका है? पित्तज का लक्षण है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेकंड। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, वातज का लक्षण क्या है? शिशिरा श्रुत, और पित्तज का लक्षण क्या है? शिशिराभिनंदा। और एक और है अभिसंध, अभिसंध का लक्षण है उष्णाभिनंदा। तो ये नोट करके रखिए। रेफरेंसेस सुश्रुत उत्तर तंत्र 6th अध्याय श्लोक नंबर 4 and 5। ऑप्शन बी सेकंड इज करेक्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज सुश्रुत अनुसार कपोत वर्णता किस दग्ध का लक्षण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कपोत वर्णता किसका लक्षण है? मांस दग्ध का लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिए इसको। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, मांस दग्ध। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 12वां अध्याय 8वां श्लोक। मांस दग्ध, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन ऑफ द डे इज सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पंचकर्म का ये क्वेश्चन है। सूची 1 में सारे द्रव्य दिए हैं और सूची 2 में उनके योग दिए हैं। तो सबसे पहले मदन फल के कितने योग बताए हैं? 133। ध्यान रखिए, मदन फल के कितने योग हैं? 133 योग हैं। जीमू तक के कितने योग हैं? जीमू तक के योग हैं 39। धामार्ग के कितने योग हैं? धामार्ग के योग हैं 60 एंड वत्सक के हैं 18 योग। ध्यान रखिए, ये सब आपको सुश्रुत चरक कल्प में मिलेगा पूरा आपको। चरक कल्प 1 to 12 जो हमारे हैं ना, उसमें सभी के योग दिए हुए हैं, वो अपने को याद करने हैं। चरक कल्प 1 to 12 अध्याय में से 1 to 6 वाले जो हैं दैट इज वामक योग, और जो 7 to 12 वाले हैं दैट इज विरेचक योग। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सेकेंड, ऑप्शन बी, A3 B4 C1 and D2। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्रीज्ड PR इंटरवल इन ECG रेफर्स टू। यदि ECG में PR इंटरवल बढ़ जाता है तो इट रेफर्स टू हार्ट ब्लॉक। इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंक्रीज PR इंटरवल इन ECG रेफर्स टू हार्ट ब्लॉक। और हार्ट ब्लॉक के भी 3 प्रकार हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, एंड द थर्ड डिग्री वाला दैट इज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, which is heart block. Next, question number 9. This is an important question. सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। काय चिकित्सा का ये क्वेश्चन है। सूची 1 में धातुगत ज्वर है, सूची 2 में चिकित्सा दी हुई है। अब सबसे पहले रस धातुगत ज्वर की चिकित्सा क्या है? रस धातुगत ज्वर की चिकित्सा बताई गई है वमन एंड उपवास। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 ए का हो जाएगा 4। रक्त धातुगत ज्वर में क्या है? सेक, प्रदेह, संशमन, तो ये हो जाएगा 3। मास मेदगत ज्वर की चिकित्सा क्या बताई गई है? मास मेदगत ज्वर की चिकित्सा बताई गई है विरेचन और उपवास। एंड लास्ट, अस्थि मज्जागत ज्वर में क्या है? अस्थि मज्जागत ज्वर में क्या है? निरूह और अनुवासन। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? लास्ट, A4 B3 C2 and D1। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रेफरेंसेस चरक चिकित्सा 3/315 श्लोक नंबर। ऑप्शन डी लास्ट इज करेक्ट।
And our last question of the day is Dhara stands for research and stat का ये question है. Option A is Directory of Health and Ayurveda related articles. Option B is Digital Helpline for Ayurveda research articles. Option C is Database of Home and Ayush Remedies of America. And last is option D, Digitized Herbal Aromatic Research Activities. So Dhara is what full form? Dhara is Digital Helpline for Ayurveda Research Articles. Option second, B is correct. Dhara stands for what? Digital Helpline for Ayurveda Research Articles. This is an important question. So that's all for today. Thank you for your kind attention.